Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Bhasin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish ji, and I'm your host Meher Bhasin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish ji. Hello Prem ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And Premji's taken his time out to be with us in the studio because today is a very special email dedicated episode where I am reading out the emails you've written into us and Premji is going to help you with his guidance and remedies. Let's find out who sent in the first email for today. और Premji आज की पहली email आई है. This is from YRA. Gender is male. Date of birth is December 18th, 1951. Place of birth is Karachi, Pakistan. Time of birth is approximately 4:30 early morning. They're very concerned about the retirement and future financial outlook going forward for him. He wants to take care of his mom as well, who's been living in a very tight economical financial lifestyle with him. He's also looking for like a break for the last 10 years, but does not see the light at the end of the tunnel as to what is it that he should do. He needs your help and guidance. देखिए मिस्टर YRA, अगर आप 18 दिसंबर 1951, इनका कराची पाकिस्तान, इनका 4:30 AM का बर्थ है, इनका लिब्रा राइजिंग और इनका जो मून साइन जो है वो कैंसर है, तुला लगन है, कर्क राशि है इनकी, एंड तुला लगन का लॉर्ड होता है जी शुक्र, और इनको राहु की दशा चल रही है 2012 से, जो कि 5th हाउस में बैठा हुआ है शनि के अंदर. तो 5वां स्थान होता है ब्रेन का, हमारे करियर का, हमारी एजुकेशन से जुड़ा रहता है. तो राहु वहाँ बैठा रहे तो आप एंग्शियस रहेंगे हमेशा, वैसी आउटकम नहीं देते, हार्डशिप देखते हैं, मतलब चीज़ें पूरी हो जाती हैं लेकिन वुड यू से मीन चेक टू चेक लाइफ आ जाती है जिसके अंदर. राहु इम्पैक्ट है 2030 तक रहने वाला है, बट इस साल राहु शुक्र में आ गया तो जो इनका राइजिंग लॉर्ड है, तो ये 3 साल जो हैं इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जाएंगे इन टर्म्स ऑफ जो इनकी रिटायरमेंट भी जिसमें ये कर रहे हैं. तो दिस इज़ द ओनली 3 years ऑफ विंडो वेयर जिसमें एक फाइनेंशियली चीज़ें भी काफ़ी बेटर हो सकती हैं. बट जैसे ही 30 में राहु ख़त्म होगा तब इनको जुपिटर की दशा आएगी. गुरु जो है 6th 8th हाउस और 12th हाउस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहते हैं जो आपका शत्रु बैठ जाए 6ठे स्थान में या 8वें स्थान में या 12वें स्थान में नीच घरों में, तो वो दशा आपको फ़ायदा कर जाती है. तो जो 30 के बाद इनको जो गुरु आएगा 16 साल के लिए जुपिटर, वो जो पीरियड है इनका काफ़ी स्मूथ जाएगा अपनी लाइफ के अंदर. तो जो इनकी ओल्ड एज में जो फाइनेंशियल जो इनकी प्रॉब्लम है वो इतनी दिखती नहीं है जितना ये सोच रहे हैं लाइफ के अंदर. माँ बाप का सुख जो है वो इनकी जन्मपत्री में अभी है. तो ये तो जर्नी है बर्थ और डेथ की, सबके साथ एक दिन ये होना है, बट अभी ही हैज़ टू फाइट बेसिकली. So Premji, any remedies and guidance for him? देखिए, एक इनको डायमंड पहन के रखना चाहिए जिससे इनका लग्नेश लॉर्ड स्ट्रांग हो जाए. राहु को शांत करने के लिए बेसिकली इनको एक सिल्वर एलिफेंट लेना चाहिए 50 ग्राम का. उसको किसी भी होली वाटर में, चाहे गंगा जल हो चाहे कोई भी स्पिरिचुअल वाटर हो, उसमें डाल के ग्लास जार में अगर ये अपने घर में रख दे, जिससे राहु इम्पैक्ट जो है वीक हो जाएगा. और ये फीमेल ऑर्गेनाइजेशन में इनको डोनेशन करते रहना चाहिए, तो जिससे ओवरऑल इनकी फाइनेंशियल, इनकी पर्सनल लाइफ में सब चीज़ों में पॉजिटिविटी दिखेगी. Thank you, Premji. So like Premji is advising you, yes, times are looking very difficult for you, especially with your mom being with you. It's a big responsibility at your age. However, Premji has given you the remedies, guidance and solutions that you need for yourself. You need to make sure that you wear the diamond. It has to be a good quality, untreated, unheated stone. And let us know how things turn out for you. और दोस्तों वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the first 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Aries for this week. Premji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए, आपको थोड़े पर्सनल इश्यूज रहेंगे अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर. थोड़े अपने एक्सपेंडिचर को ट्रैक करके रखिएगा, पैसे को लेवलिशली मत स्पेंड करिएगा. काम के ऊपर थोड़ा बिजी वीक रहेगा, बट जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें से आप निकल जाएंगे. टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, जो चीज़ें आपने निगलेक्ट करी हैं अपने काम के ऊपर, अभी समय आ गया कि आप उसको लाइन वाइज सबसे आगे रखें और उसको फिनिश करें. जो लोग प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, फाइनली उनको अपना नया क्लाइंट मिल जाएगा.
ये अच्छा टाइम है अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसे को जहाँ पे जो आप काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। Gemini? जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए आप मैटरनल प्रोग्रेस एंड इंटरनल ग्रोथ देखेंगे इस वीक के अंदर। हेल्थ थोड़ी सी ट्रबलसम रहेगी, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए अपने आप के लिए। ये इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा फोकस करें अपनी काम की सिचुएशंस के ऊपर भी। Cancer? कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए आप हर चीज़ को सीरियसली लेंगे इस वीक के अंदर और आप इम्प्रूव करेंगे डेप्थ ऑफ द इमोशनल बॉन्ड्स, खास करके अपनी फैमिली के साथ। फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल वीक है आप लोगों के लिए और आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे काम और अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी। काम का जो प्रेशर है वो थोड़ा काफ़ी बढ़ सकता है इस वीक के अंदर। थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रोडिक्शंस। और दोस्तों प्रेम जी हमारे साथ यही रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर अ वेरी स्मॉल ब्रेक। बट बिफोर वी गो, इफ यू वांट योर हॉरोस्कोप read on our show, quickly write into us at prem@premjyotish.net. See you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish Ji. Prem Ji is here in the studio because today is a very special email dedicated episode where you as a viewer have written in so many questions about your health, wealth and family, and Prem Ji will read out whoever's email I read out now and explain to you what is happening as per your birth chart and give his best remedies and guidance. So let's find out who sent in the next email. और प्रेम जी अगली email आई है। This is from Mr. KK. Date of birth is July 20th, 1983. Place of birth is Amritsar, Punjab. Time of birth is 11:30 at night. Wants to know about the financial position for his upcoming future, and also he's worried about any health issues that may arise for him and wants your help and guidance. देखिए मिस्टर के अगर आप 20 जुलाई 1983, इनका अमृतसर पंजाब 11:30 का बर्थ है। जी। इनका पाइसिस राइजिंग है और इनका मून साइन जो है वो स्कॉर्पियो है। मीन लगन है, वृश्चिक राशि है इनकी। मीन लगन का लॉर्ड होता है जुपिटर, जो इनकी जन्मपत्री में मून के साथ डेस्टिनी हाउस में है। तो कुंडली में गज केसरी योग है इनके, which is the most insanest yoga to have in your birth chart. Yeah. Because when you have that, it means आपको लाइफ में कुछ भी मिल सकता है। Wow. दशा इनको उल्टी चल रही है शुक्र की 2007 से, जो कि 2027 जनवरी तक रहने वाली है। वीनस जो है वो ऑपोजिट है जुपिटर के और हेल्थ के एरिया में भी बैठा हुआ है। तो इसलिए फाइनेंशियल जो पोजीशन जो है इनकी हमेशा कंसर्न वाली ही रही है। कहते हैं 99 हो जाता है, 100 नहीं होता है। आप स्नेक्स एंड लैडर की तरह आप 99 पे पहुंचते हैं तो देन यू कम बैक टू द 7। Right. तो वैसा ट्रांजिशन है शुक्र का। अब शुक्र में इस वक्त जो है बुध ट्रांजिट कर रहा है, वो इतना पॉजिटिव नहीं होता। फिर आगे केतु भी है, तो हेल्थ और जो प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा कंसर्न रहेगा। स्किन से रिलेटेड इन्फ्लामेशन हो जाती है कई बार, एंड कई बार आपको ब्रीदिंग के भी थोड़े इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। तो 2027 टिल जनवरी तक का जो पीरियड है वो थोड़ा सेंसिटिव है, बट उसके बाद फिर इनको सूरज की दशा आ जाएगी जो 6 साल चलेगा। फिर आगे चंद्र 10 साल का, तो फिर आगे का जो टाइम है इनकी लाइफ का 2027 के बाद जो 18 साल है वो इनके लिए बहुत ही बड़ा राजयोग पीरियड है। So Prem ji, any remedies and stones for him to wear? देखिए कि इनको येलो सफ़ायर पहन के रखना चाहिए। क्या कहते हैं, अपनी इंडेक्स फिंगर में थर्सडे के दिन गोल्ड के अंदर सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे इनका राइजिंग लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए। दूसरा, इनको एक पर्ल पहन के रखना चाहिए अपनी राइट हैंड की लिटिल फिंगर में सिल्वर में। मंडे के दिन उसको सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे इनका मून जो है वो स्ट्रांग हो जाए। शुक्र दशा जो चल रही है तो इनको किसी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन में ट्वाइस ईयर फ्राइडे के दिन डोनेशन देते रहना चाहिए, जो इनको 2027 तक देना है। ताकि जैसे ये डोनेशन करेंगे तो ये जो पीरियड वीनस का जो हेल्थ और फाइनेंसिस पे इम्पैक्ट कर रहा है वो भी इनका आराम से निकल जाएगा। Thank you, Prem ji. So like Prem ji is advising you, you are pretty blessed because things will turn around for you. As per your birth chart, you have a very powerful birth chart. However, you have to do the remedies that Prem ji has mentioned. Along with that, you have to start wearing the pearl on Monday. There's a small mantra, you need to be vegetarian when you do it, besides the other remedies that Prem ji mentioned. However, there's a very important question I have, not just for you, but for all the people that Prem ji does mention. Prem ji, you sometimes tell them they have Gaj Kesri Yoga, or if somebody ends up with a Gaj Kesri Yoga, what do you mean by that? What's the impact, the powerness of it, and when does it happen for somebody? गज केसरी योग क्या होता है? जब किसी की जन्मपत्री में जुपिटर और मून
जो है एक स्ट्रॉन्ग राशि के अंदर कॉम्बिनेशन फॉर्म करते हैं। तो जैसे गुरु बिलोंग्स टू द 9th हाउस इन द बर्थ चार्ट, तो इनकी जो कुंडली का राइजिंग लॉर्ड जो है वो जुपिटर है, इसे पाइसिस राइजिंग। तो जब जन्म से जैसे डेट टाइम प्लेस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ में जैसे कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाते हैं, तो गज केसरी योग जो है बेसिकली वो जुपिटर और मून का कॉम्बिनेशन है, जो बाय बर्थ से इनकी डेस्टिनी हाउस में बैठा हुआ है। तो वो गुरु गज मीन्स राजा, केसरी मीन्स हर तरह की चीज़ें लाइफ में अचीव कर जाना। फिर अगर वैसे ही अगर इनकी लाइफ में दशा आ जाए किसी पावरफुल ग्रह की, जैसे अब इनको सूर्य दशा आएगी, सन सपोर्ट जुपिटर एंड मून इन अ वेरी बिग वे। अभी शुक्र दशा चल रही है, वो ऑपोजिट है जुपिटर की, तो वो योग ही एक्टिव नहीं है। तो अगर ये योग में आपकी दशाएं अच्छी चल जाए तो यू कैन सक्सेस का मेजर ही नहीं कर सकते। यू कैन बिकम ए किंग, यू कैन बिकम ए हेड ऑफ द organization, you can be head of the state, you can become a president, you can become anything in the life if you want to. That is the power of Gaj Kesari Yoga. This is basically a kingdom, जो कहते हैं पुराने जन्मों का जो फल है आपको इस जन्म में मिलने वाला है इन ए पॉजिटिव वे में गज केसरी योग, जिसका इम्पैक्ट इनको 2027 फरवरी के बाद दिखना शुरू हो जाएगा। जब सूर्य दशा चलेगी 6 साल, फिर ये 10 साल के लिए चंद्र दशा में जाएंगे। चंद्र और गुरु साथ में बैठे हैं, उस टाइम पे एवरीथिंग विल बी, जो कहते हैं ना जी कि यू विल एक्सपीरियंस समथिंग विच नॉर्मल पर्सन हैवंट सीन in their entire journey in the life. That's beautiful. So that message goes to you for writing into us that you have a very powerful birth chart that Premji has just read out to you. However, time now for us to understand the predictions for the next 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अपने काम और अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी। बहुत सारा प्रोग्रेस रहेगा आपके काम के ऊपर भी, बट एट द सेम टाइम बहुत सारा प्रेशर भी बना रहेगा और आप उसको अच्छे से हैंडल भी कर पाएंगे। काफ़ी प्रोडक्टिव रहेंगे इस वीक के अंदर थ्रू आउट। वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए काम के ऊपर थोड़ा कंपटीशन आप लोगों के लिए बढ़ सकता है। मॉनेटरी गेन आपको काफ़ी अच्छा होगा। आपकी जो एग्जिस्टेंस है काम के ऊपर, जो आपके लोग आसपास हैं, उनको काफ़ी हेल्प करेगा इस वीक के अंदर। लव्ड वन, फैमिली एंड फ्रेंड्स जो है वो आपके और भी करीब आ जाएंगे। लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि इसी तरह से आप अपने प्लान को इक्वली एक्सिक्यूट कर पाएँ। आपके जो इश्यूज़ हैं आपको एड्रेस करने पड़ेंगे प्रोफेशनली एंड पर्सनली ऑल्सो। पर्सनल जो रिलेशनशिप्स हैं उसको थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए आपको इस वीक के अंदर। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए आप कमिटेड रहेंगे जो भी काम आप कर रहे हैं इस वीक के अंदर। वर्क एंड जो फैमिली है डिमांड करेगी बहुत सारा हार्ड वर्क एंड एफर्ट। अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, जो आपने मेहनत करी है वो काफ़ी हफ्तों से आप इस चीज़ को कर रहे हैं। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो आपने करी है वो आपके लिए उसका फ़ायदा दिखना शुरू हो जाएगा आपको। थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस। और दोस्तों प्रेम जी हमारे साथ यही रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर अ वेरी स्मॉल ब्रेक। बट बिफोर वी गो ऑन टू द ब्रेक, लेट मी रिमाइंड यू व्हेन वी कम बैक वी बी टेकिंग मोर emails and talking about the last 4 zodiac signs predictions for this week. So don't go too far. We'll see you right after the short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotishi. And Premji's been in the studio to help us all understand what exactly is going on with the viewers who've written in to us, because today is a very special email dedicated episode. So let's find out who sent in the next email for today. This is from J. Kaur. Date of birth is Jan 25th, 1994. Place of birth is Seattle. Time of birth is 12:50 in the morning. Wants to know what kind of path should she continue, whether she should become a doctor or a nurse. Are there any other paths that you see where she could be strong in? Also realize that she does not have a mental and spiritual strength to accomplish a certain things in her life. So what are the things that she needs to do to better herself, to get that confidence and that energy in her to be able to accomplish what she wants? देखिए जे को, अगर आप 25 जनवरी 1994 सियाटल वाशिंगटन, इनका 12:50 AM का बर्थ है जी।
इनका लिब्रा राइजिंग और इनका मून साइन जो है वो जेमिनाई है। जी। तुला लगन है और मिथुन राशि है इनकी। तुला लगन का लॉर्ड शुक्र होता है। वीनस जो है वो फाइनेंस एंड साइंस वाली चीज़ों से ही जुड़ा हुआ है। तो अगर ये साइंस वाले करियर में जाना चाहती है तो शी विल एबल टू अचीव द सक्सेस इन टू दैट एरिया टू। शनि दशा चल रही है, सैटर्न कुंभ राशि में 5th हाउस में ही बैठा है, तो शनि इज ऑल्सो सपोर्ट बेसिकली टू शुक्र एंड शनि, Venus and Saturn, they are very close to each other and they Right. support each other in that. Right. अब सैटर्न में जो है बेसिकली केतु ट्रांजिट कर रहा है और शनि 5th हाउस में 5वां स्थान सोच से है, तो हम थोड़ा अपने आप को अंडर वैल्यू करते हैं। वी थिंक कि मैं ये चीज़ें कर नहीं पाऊंगा, जब आप उससे 10 टाइम्स केपेबल होते हैं करने के लिए। सम टाइम वी हैव प्लान बट वी कैन नॉट एक्सिक्यूट। Right. दैट इज सैटर्न इन 5th हाउस। तो बट जैसे ही सैटर्न इनका वीनस में जाएगा नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद, all these things will vanish. She will start seeing a very very strong and positive outcome. Mentally बहुत strong हो जाएंगे ये, and the perfect है इनके लिए मेडिकल करियर में जाना। राहु 2nd हाउस में है तो वो कई बार हमारे को वेवरिंग माइंड कर देता है कि हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, तो उसको अलाइन करके रखना। अदरवाइज शी हैज़ a very powerful birth chart. So then, Premji, should she become a doctor or a nurse, and what would you recommend as remedies? देखिए, इनको जो है अपने मेडिकल करियर में डॉक्टर की तरफ ही जाना चाहिए, जिसमें वो बहुत बड़ा सक्सेस मिलेगा इनको। और रेमेडीज वाइज इनको एक डायमंड पहन के रखना चाहिए, 1 कैरेट का प्रिंसेस कट राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, फ्राइडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने। सैटर्न 5th हाउस में है तो उसके लिए इनको क्या करना चाहिए कि 5 एलिमेंट्स ले लें जो होते हैं विद द शेल के साथ। उसको सैटरडे के दिन जाके किसी भी टेम्पल में जाएं, वहाँ पहले भगवान के आगे रखें एंड वट एवर द प्रेयर यू वांट टू डू इट, आप वो करें और फिर उस जो एलिमेंट्स को वापस लेके आए, उसको ब्लैक क्लॉथ में बांध के इनके क्लोजेट में या किसी ग्लास जार में रख देना चाहिए। अच्छा। तो जिससे जो सैटर्न इम्पैक्ट है वो इनके फेवर में आ जाएगा। एंड थर्ड थिंग जो है, इनको दुर्गा चालीसा करते रहना चाहिए, बिकॉज मिथुन राशि है तो गॉडेस दुर्गा जो है इनकी इष्ट देवी हैं। अगर वो वेंसडे और फ्राइडे के दिन करते रहे तो दैट विल गिव हर अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। Thank you, Premji. So, like Premji is advising you, your time is turning around because from next year onwards, everything will happen for you. Your career is not towards nurse. Yes, it is in the medical profession, but better that you turn into for being a doctor because you are going to achieve your goal. You need to do the almond remedy that Premji has mentioned, making sure it's a full tight almond with a full covered shell. There's no crack, there's nothing which is broken in those shells, and you need to make sure that you're also vegetarian when you do these remedies. और दोस्तों वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the last 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Premji, what are the predictions for Sagittarius? सैजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए, आपकी जो ग्रेटेस्ट डिज़ायर है इस वीक के अंदर जो है फाइनली वो पूरी होने वाली है। एंड आप बहुत सारे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे जिससे आप दूसरों की मदद करेंगे, खास करके अपनी पर्सनल लाइफ में भी। ये फेस है आपकी लाइफ का जो फेवर्स करेगा ट्रैवल एंड रोमांस को, और कुछ लोगों को बहुत सारे मॉनेटरी गेन भी होंगे। Capricorn? कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, जो आपकी डिटर्मिनेशन है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी आगे सक्सेस आपके काम के अंदर के लिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली जो है बहुत करीब आ जाएंगे। अपनी स्पेंडिंग को थोड़ा चेक करके रखिएगा और किसी भी छोटी स्मॉल सिचुएशन को काम के ऊपर भी अटेंशन दीजिएगा। Aquarius? एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, काफ़ी बिजी वीक है आप लोगों के लिए। बहुत सारी चीज़ों को आपको हैंडल करना पड़ेगा अपने काम के ऊपर भी। आप जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप रिजॉल्व कर पाएंगे, और जिसकी वजह से काफ़ी अटेंशन की भी ज़रूरत है आपको। प्रेशर काम के ऊपर डिमांड करेगा पहले से ज़्यादा मेहनत करने के लिए। Pisces? पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, आप काफ़ी बिजी रहेंगे हर चीज़ को हैंडल करते समय अपने काम के ऊपर भी। बेनिफिट होगा आपको वेरियस डील्स जो आपने काम के ऊपर करी हैं। ये अच्छा टाइम कंटिन्यू रहेगा और आप आगे से जितनी भी चीज़ों को बड़े अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, और काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मनी भी आप इस वीक के अंदर बनाएंगे। Thank you, Premji. You came to the show, help all of us understand exactly what was happening with the viewers' birth chart. और दोस्तों, अगर आपको लगता है that you need Premji's remedies, guidance and solutions, quickly write into us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying namaste. See you next week.